Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is about world history and their aspects. In previous lecture we have already discussed that Crossing Boundaries, Ecumenical World and Global History by Bruce Maslich, and we have discussed about ecumenical history. What is ecumenical history? What is environmental history? Their aspects, their universal world, and we have shared already Paul Costello, their views, Bruce Maslich's views, conception, religious conception about Christianity, Buddhist and Jewish. Now we have to discuss about the Goethe scientific work. I have already read about the English scientists and their claim and their sacrifices about nature. The situation is now bad in regard to physics. First, now we are going to discuss about speculative philosophy of history. What is speculative philosophy of history? Move on ecumenical history in its various guise to what may more properly be called world history. In the sketch so far offered, we have mainly considered what can best be called speculative philosophy of history, a kind of metaphysics and not the ordinary practice of contemporary historian. Means कि जो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ओल्ड हिस्ट्री के बारे में, ओल्ड हिस्टोरियंस के बारे में, ओल्ड वर्ल्ड के बारे में, अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड हम उनको इस वक्त के हिस्टोरियन से मैच नहीं कर सकते. नाउ दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस हिस्टोरियंस which were in the past. They wrote many things, many sketches so far offered, but we have mainly considered that now that technology has improved the study, knowledge and much more things. According to world history, let us then move on from ecumenical history in its various guises to what may more properly be called world history. In the sketch so far offered, we have mainly considered that can best be called speculative philosophy of history, a kind of metaphysics and not the ordinary practice of contemporary history. Now, we must look more closely at the latter as they seek to establish large pattern and processes in the world history. Here I will be focusing on William McNeill. Now, William McNeill, along with a few others as our entry point. Before doing so, however, it is well to recognize the diversity of definitions. अब देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर हम लोग जब हम इसकी डेफिनेशन को ही स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. मीन्स के कॉन्फ्लिक्ट है उनके दरमियान, उनके बयानात के दरमियान बहुत सारा कंट्राडिक्शन पाया जाता है. Now we are saying that many of them are extremely amorphous and most of them reflect different schools within history, world history itself. Their thoughts, their school of thoughts, their ideas, their concepts are totally different among each other. Now we have to discuss about the diversity of definition. Why there is diversity of definition? Because in different time, different writer, different historians research and gave their theories about the world history. There is a process in the world history for the time being. Here I will be focusing on William McNeill along a few others. Few others means at that time they were representing their history, historical events, and recognize the diversity of definition given tone to new world history. To new world history means
today's history which are present in our world. Now the second thing is, next one is innovation to membership. The innovation to membership of the World History Association means WHA begins by saying, if you teach the whole history of the whole world in 9 short months, you know the challenge of planning and organizing a meaningful course in world history. First, of the World History Association saying that अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर हिस्ट्री को शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट वे में और शॉर्ट टाइम के अंदर अगर पढ़ाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे नाउ या फिर समझाना चाहेंगे, यू मस्ट बी प्लान और ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल कोर्स. मीन्स शॉर्ट टर्म में, वर्डीनेस मीनिंग में आप उसको बताना चाहेंगे तो क्या होगा कि यू हैव टू प्लान द थिंग्स, द theories which have already invested in the written material, then the association research already include in the whole text. There should be a planning and organizing. The primary figure of modern world history is of course William Neil, MC Neil. He himself has told us directly in line of Toynbee. It was Toynbee who inspired him with an ecumenical vision. Now, what is ecumenical vision? हमने पहले डिस्कस किया था कि जो माहौलियाती विजन है, जो ecumenical vision है, always be popular through the historian that they research about the environment, and after this research they have to put their theories on the environment, and then this is all about the things which have living and non-living organism. Thus, now what is obvious principle? Obvious principle is, although adherent of WHA often deny it, means WHA reject this principle, but this does seems to say that world history is the whole history of the world. Means their rejection, after their rejection, there seems to say that world history is the whole history of the world. कि जो world history दी गई है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री दी गई है, पूरी दुनिया की हिस्ट्री दी गई है. अपीयरिंग दस टू सफर नो ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन. यहाँ पर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जस्ट जो थीरीज उन्होंने दी हुई है हमें जस्ट यहीं तक पूरे वर्ल्ड को उन्होंने लिमिटेड कर दिया है. बट इन द रियल द थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम दीज थीरीज. दैट वो यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को उन्होंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है. बट इन रियलिटी हम अगर आगे चलते जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग, हम देखते हैं कि बहुत सारी न्यू इजादात, न्यू इनोवेशंस हैं जो हम देखते हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक चेंज हैं फॉर द चेंजिंग शेप ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री. यहाँ पर एक और पॉइंट है, अ मोर लिमिटेड डेफिनेशन इज गिवन बाय जेरी बेंटले, द एडिटर ऑफ द जर्नल ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. अब वर्ल्ड हिस्ट्री का एक जर्नल है, उसमें उन्होंने क्या किया कि मजीद एक लिमिटेड डेफिनेशन तैयार की हैं, ठीक है, अपने एक जर्नल के अंदर जो वर्ल्ड हिस्ट्री के मुतालिक है. यहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया कि द वर्ल्ड इज दैट द डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रू द इकोमेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू. मीन्स जब वो लोग जो हिस्टोरियन है अपने वर्ल्ड से, जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में वो लोग रहते हैं, अपने कल्चर के मुताबिक ही वो लोग लिख पाते हैं, ठीक है. एंड दैट टाइम इन पास्ट इवेंट्स द कल्चर इज लिमिटाइज्ड. मीन्स के ट्रांसपोर्टेशन लिमिटाइज्ड, उसकी लिमिटेशंस थी, लोगों का आपस में कम्युनिकेशन गैप था काफ़ी, लेकिन वो कोशिश में रहते थे कि किसी तरीके से गैप को कम किया जाए थ्रू देयर ओन बिलीफ. नाउ द नेक्स्ट इज primary figure. What is primary figure? The primary figure of modern world history is of course William MC Neil. जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं हिस्ट्री के हवाले से तो हम देखते हैं कि जो MC नेल है वो प्राइमरी फिगर ही है यहाँ पर हिस्ट्री के हवाले से.
That means he researched many things on environment like other things. He follows, as he himself has told us directly in the line of Toynbee. He follows, he himself has told us directly in the line of Toynbee. Means he also follows the Toynbee, his theories. It was Toynbee who inspired him with an ecumenical vision. मीन्स कि जो टॉइनबी ने इक्यूमेनिकल विजन दिया था उसको ये फॉलो कर रहा है, बट इज अ विजन दैट एमसी नेल ट्रांसलेटेड इनटू मोर मंडेन हिस्टोरिकल प्रैक्टिस। यानी कि जब वो उसको ट्रांसलेट करता है उसकी थ्योरी को, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा चीजें यहाँ पर देखता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि यस, अकॉर्डिंग टू इक्यूमेनिकल विजन ऑफ एमसी नेल, of Toynbee, he says that there is many researches which is towards us. हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर हमें ऐड करके दिखाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं when he remarks that my impression is that most participants in the discussion about the definition of the world history took interaction between peoples। अब एक नई डेफिनेशन यहाँ पर हमें दिखाई गई है अकॉर्डिंग टू एमसी नेल, दैट took interactions between peoples participating in large scale historical process to be one of the principal concern of world history। अब सबसे पहले क्या है यहाँ पर, वो कहता है कि जी लोगों का आपस में मेल जोल, इंटरेक्शन, देयर कल्चरल डिफरेंसेस, देयर कल्चरल मीटिंग्स, their cultural similarities and dissimilarities are showing in this perspective, and their principles concerned of world history। different cultures का आपस में living style, their interaction, उनका आपस में interaction। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि सबसे पहले लोग ट्राइब की शेप में रहते थे बहुत ज़्यादा, और उनका लिविंग स्टाइल जो ट्राइब मतलब के क्लोज रहा करते थे, नियर होते थे, उनका काफी हद तक आपस में कल्चरल ट्रेडिशनल जो है था सेम था, बट द मेन फिगर इज देयर रिलीजन। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। फर्स्ट, माय इंप्रेशन इज दैट मोस्ट पार्टिसिपेंट इन द डिस्कशन, basically the definition of world history already we have read, that took interaction between people participating in large scale historical process to be one of the principal concern of world history. Now again, and enumerous seems to envelop such a conception of world history. For example, would every historian of the Industrial Revolution, even if restricted to one country, no, यहाँ पर वो हमें मिसाल के तौर पर बता रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट कि मिसाल के तौर पर कि वुड एवरी हिस्टोरियन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, के तमाम जो हिस्ट्री के हिस्टोरियन हैं, ठीक है, वो तमाम क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में ही बताते हैं या समथिंग मोर लाइक दैट। इवन इफ रिस्ट्रिक्टेड टू वन कंट्री, यानी अगर इनकी एक हिस्ट्री है तो क्या ये सिर्फ एक मुल्क तक मौजूद है या कोई लार्ज स्केल पर कोई हिस्टोरिकल प्रोसेस है, मीन्स के वर्ल्ड के और इलाकों को और एरियाज को भी डिस्कस किया जाता है। श्योरली अ लार्ज स्केल हिस्टोरिकल प्रोसेस आल्सो नेसेसरीली टू बी अ वर्ल्ड हिस्टोरियन, यानी कि कोई भी अगर वर्ल्ड हिस्टोरियन है उसके लिए बहुत जरूरी है। एंड इफ नॉट, अगर वो नहीं है, व्हाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं है कि अगर वो मतलब लिखता है हिस्टोरियन तो वो सिर्फ एक जगह, एक मुल्क या एक एरिया या एक कॉन्टिनेंट के बारे में क्यों लिखता है, उसे पूरे ओवरऑल द वर्ल्ड के बारे में लिखना चाहिए। बेंटले कंटिन्यूज, thus world history represent among other things a dialogue between the past and the present। देखें अब यहाँ पर मेन चीज डिस्कस की गई है कि जो डायलॉग है वो बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी कि हम अगर डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले हम अपने पास्ट इवेंट्स को देखते हैं, पास्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब उसको देखते हैं, उसके बाद हम प्रेजेंट को पढ़ते हैं तो दोनों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, ठीक है।
ये दोनों के दरमियान जो डायलॉग फॉर्म बनती है वो किस किस्म की है? इन दैट इट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट फॉर द integrated and interdependent world of modern time. Now, first they tells us about the independent world and the past events, historical context, यानी पूरा context बनाकर हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि past किस हद तक limited था और अब किस हद तक इस चीज़ में modernization की गई है in modern time, और कितनी हद तक हमें independent कर दिया गया according to history. Now what is, हम यहाँ पर देखते हैं कि MC Neil follows, क्या फॉलो करता है? डायरेक्टली इन लाइन ऑफ टॉइनबी. ही इंस्पायर्ड हिम विद एन इकुमेनिकल विजन. इकुमेनिकल विजन से इंस्पायर्ड होता है. बेसिकली दिस विजन दैट ट्रांसलेटेड इनटू मोर हिस्टोरिकल प्रैक्टिस. MC Neil plagues and peoples is intellectual world removed from a study of history. MC Neil का जो प्लेग के बारे में या उस टाइम की कौमों के बारे में जो अल्फाज थे उस दौर के बारे में, उन्हें काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया गया है स्टडी ऑफ हिस्ट्री से. क्यों कर दिया गया है? बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ पर उनकी क्लियर नहीं थी, मीन्स के विजुअल फॉर्म में हमारे पास वो अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही थी. लाइक टॉइनबी, MC Neil takes civilization as his framework of analysis. In MC Neil case, however, there are not hermetic units, no, but open to cultural borrowing. After Toynbee, the anthropologist. Now, who is the anthropologist? Anthropologist means they have to study, they have to research about the things, about the nature, about the history of nature. Now, Linton and Robert Field influenced MC Neil. What interest? MC Neil therefore are trans-civilizational encounters. Trans-civilization encounters. Next one is the anthropologist Linton and Robert Redfield influenced MC Neil. How they influenced? फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता कौन है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेसिकली वो लोग होते हैं जो माहिर बशरियात, यानी कि जो इंसान के बारे में रिसर्च करते हैं, इंसान, उनके कल्चर, उनका लिविंग स्टाइल, एंड देयर मच मोर थिंग्स विच दे हैव टू, उनके बारे में जो लोग रिसर्च करते हैं, जो थ्योरीज पेश करते हैं. फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास है टॉइनबी के बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड इन्फ्लुएंस्ड MC Neil, and what interest MC Neil therefore trans civilization encounters. यानी कि MC Neil की कौन सी ऐसी थ्योरी है जो इनको इनकाउंटर करती है, अट्रैक्ट करती है, जो इनको काफ़ी हद तक ऐसे लगता है कि यस देयर इज अ स्टेटमेंट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज. मीन्स के ट्रांस सिविलाइजेशन का जो अमल है, इंसान ने जो सफ़र किया है हिस्ट्री से लेकर अपने पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, उसमें क्या तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा इन्होंने डिस्कस किया है. इट इज़ दिस इंटरेस्ट दैट देन शेप्स हिज डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर. अब वो कहता है कि बेसिकली क्या है, ये इंटरेस्ट है, देन द शेप्स ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेशन की शेप इसलिए बदल रही हैं, इसलिए चेंज हो रही हैं कि बेसिकली यहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट बदल रहे हैं. क्यों बदल रहे हैं? बिकॉज दे हैव डाइवर्स कल्चर, डिफरेंट कल्चर, दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग कल्चर्स. अब यहाँ पर उनका जो कल्चरल क्लैश आ रहा है, यानी उनके जो कल्चर्स में फ़र्क है, उसकी वजह से डेफिनेशंस मुख्तलिफ जगह पर वर्ल्ड हिस्ट्री की चेंज है. अब क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा रिलीजन की बात भी करेंगे. नाउ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, द स्प्रेड of religion and plagues, these and a multitude of other factors concerned MC Neil. Many reasons are linked with the MC Neil. How? Then the long distance trade. Now के first time ये होता था toward with the ships, बड़े बड़े ships के जरिए, जहाज़ों के जरिए बिजनेस हुआ करते थे मुख्तलिफ कंट्रीज में, मुख्तलिफ स्टेट्स में या मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में. देन तभी वहाँ पर लोग मुख्तलिफ
रिलीजन के लोग जाया करते थे, वो आपस में डिस्कस किया करते थे, मतलब अपनी प्रीच भी किया करते थे। मिशनरीज जाया करते थे। सबसे पहले तो जैसे क्रिश्चियन जाते थे, उन्होंने वहाँ पर अपना तबलीग का, मिशनरीज का सिलसिला स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद साथ ही कुछ वो चीज़ें ले जाया करते थे, फिर यहाँ का मटेरियल वहाँ ले जाते थे ट्रेड के लिए, वहाँ की चीज़ें यहाँ ले आते थे, और इसके साथ ही बहुत सारे कल्चरल चीज़ें, ड्रेसिंग, देयर थिंग्स, देयर इवन के देयर क्या कह सकते हैं कि अपना वो लिबास वगैरह का ट्रेंड भी जो था वो वहाँ से ले आते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि अब यहाँ पर इट इज दिस इंटरेस्ट दैट देन शेप्स ऑफ हिज डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग द पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर, long distance trade, the spread of religion and plague, these and a multitude of other factors concern MC Neil। यानी कि ये जो चीज़ें ये अपनी रिसर्च बता रहे हैं ये लोग, ये बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक है MC Neil के साथ, जो कि इन्होंने यहाँ पर अपनी रिसर्च में बताया, रेडफील्ड ने और ये जो हमारे पास लिंटन है इन्होंने। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल अवेयरनेस। एंड व्हाट इज बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल अवेयरनेस? मीन्स के इंसान की क्या कह सकते हैं कि इंसान का बनना, पैदा होना, फिर इस दुनिया में उसका सर्वाइवल, फिर उसका अपने माहौल के साथ, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, फिर उसका लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशंस हैं। फर्स्ट, दिस कंसर्न is always informed by a biological and ecological awareness totally missing as we have seen in his inspiration Toynbee। अब कैसे मिसिंग है? वो कहता है without specifically invoking the theory of evaluation, MC Neil lives and writes in its environment. The result have been brilliant treatments of processes occurring on the worldwide scale, such as the spread of disease or of military power. Now there is a discussion, many discussions that के सबसे पहले तो वो कंसर्न करते हैं कि बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल अवेयरनेस मस्ट है, जिसमें देख रहे हैं हम कि टोटली यहाँ पर उनकी बहुत सारी चीज़ें टोइनबी की क्या है, तो वहाँ से लेकर MC Neil की बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, और ख़ासतौर पर उनकी थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन को यहाँ पर काफ़ी हद तक मिस किया गया और दिखाया गया कि कैसे MC Neil ओनली अपने ही इन्वायरमेंट के बारे में लिखता है, जिस इन्वायरमेंट में वो एग्जिस्ट करता है, जहाँ वो मौजूद है, जस्ट वहाँ पर उसने अपने नॉलेज को लिमिटाइज कर दिया है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। मीन्स यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि काफ़ी हद तक ब्रिलियंट ट्रीटमेंट किया गया है वर्ल्ड वाइड स्केल का। कैसे कि जैसे उसने अपनी एक डिजीज़ का जिक्र किया, प्लेग का, कि किस तरह से ताउन की बीमारी फैली। अब ज़रूरी नहीं कि वो जो बीमारी थी कि पूरी दुनिया पर फैल गई, बेसिकली वहाँ पर यह था कि ऑन वन एरिया द स्प्रेड ऑफ प्लेग इज शोइंग दैट कि अब एक एरिया में जब चीज़ को लिमिटाइज कर दिया जाए तो जस्ट वो उसी के बारे में ही बताएंगे और उसी की हिस्ट्री पर सारी लाइट्स डालते हैं। नेक्स्ट वन इज MC Neil and others have expanded the scope of world history both in its extension in past time and in geographical extent. Now one encounters of course variants world history. The crucial variable is one's definition of world. Thus Fernand Braudel seems to have abandoned the fascination with civilization and to have concentrated on world system in the sense of world constructed by trade and culture. Now there is thing that MC Neil and others have expanded the scope of world history। यानी MC Neil और उस दौर के जो हिस्टोरियन थे उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को मज़ीद एक्सपेंड करने की कोशिश की है, जिससे एक नई, एक जिसे कहते हैं हमें नया एक स्कोप बना है, ठीक है। In past time and the geographical extent, one encounters of course। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिस्ट्री में किसी एक की आप डेफिनेशन को करेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि ये है कि फॉर द टाइम बीइंग हिस्टोरियंस आर चेंज एंड देयर व्यूज आर चेंज, देयर स्टाइल्स आर चेंज, देयर डिक्शंस आर चेंज। द बेसिकली द क्रूशियल वेरिएबल इज वन
definition. Now Fernand Braudel seems to have abandoned. अब एक और historian है Fernand Braudel, वो क्या करता है, यहाँ पर वो लिख रहा है openly that fascination about civilization and to have concentrated on world system. अब यहाँ पर जो बेसिकली उसकी कंसंट्रेशन है वो वर्ल्ड सिस्टम पर है कि वर्ल्ड सिस्टम बेसिकली है क्या. देयर इज अ सेंस ऑफ वर्ल्ड विच कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रेड एंड कल्चर. अब यहाँ पर एक सेंस क्रिएट की जा रही है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड. वो कहता है जितना भी वर्ल्ड के बारे में हमें नॉलेज मिला, जितनी भी चीजें फॉर द टाइम बिंग हमें पता चली हैं, वो बेसिकली ट्रेड और कल्चर की वजह से पता चली हैं. यानी कि फर्स्ट किसी एक एरिया, किसी एक खिते के सिविलाइजेशन ने ट्रेड के लिए सफर किया, वाइज किया दूसरे खिते की तरफ, तो वहां जाकर हमें पता चला यस देयर इज अनदर कल्चर. अनदर कल्चर के बारे में पता चला, वहां के ट्रेडिशन के बारे में पता चला, उनके ट्रेड्स किए, फिर उन इंसान जिसे कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इन थ्योरी ऑफ इमिटेशन, कि अरिस्टोटल ने कहा, अरस्तु ने कहा कि इंसान एक दूसरे से असर लेता है, एक दूसरे की कॉपी करता है, यही उसकी थ्योरी ऑफ इमिटेशन है. और यहाँ पर वो कहता है करेक्टरिस्टिकली हिज बुक द मेडिटेरियन इज सब टाइटल द मेडिटेरियन वर्ल्ड इन द एज ऑफ फिलिप सेकंड. अब फिलिप सेकंड के दौर में एक बुक उन्होंने लिखी, ठीक है, द मेडिटेरियन वर्ल्ड के नाम से. अब उसमें क्या है, द मेडिटेरियन जो है वो मेडिटेरियन वर्ल्ड के मतलब जो दरमियान के खिते के लोग हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा है. Now what is modern world system? Basically Braudel's disciple Immanuel Wallerstein has written the modern world system. अब जो ब्रॉडल है, ब्रॉडल के बाद वॉलरस्टेन ने लिखा है मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम के बारे में, in which with much detail he has tried to show how the modern commercial and capitalist world came into existence. They write that the modern world system in which with much detail he has tried to show how the modern commercial and capitalist world came into existence. कि for the time being ट्रेड के बाद किस तरह से हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में ये कमर्शियल लोग या ये कैपिटलिस्ट जो हैं वो वजूद में आए हैं. इसकी पूरा एक प्रोसेस वाई वो थ्योरी दी है उन्होंने अपने उस बुक के अंदर, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम की. एंड इन सिमिलर अकाउंट ऑफ कोर्स, अब असल बात वो कर रहे हैं, इन सिमिलर अकाउंट्स ऑफ कोर्स कोलंबस वॉयज ऑक्युपाइज अ सेंट्रल प्लेस एडिंग अ न्यू वर्ल्ड टू द ओल्ड वन. अब यहाँ पर कोलंबस की बात करेंगे. जैसा कि हमें पता है कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया. फॉर द टाइम भी डिफरेंट लोग बाद में आए, उन्होंने दावा किया, जैसे अमेरिको वेस्पुकी था, उसने कहा जी मैंने दरियाफ्त किया. उसके बाद मैगलन आया, मैगलन ने अपना सफर जारी रखा. बेसिकली दिस वाइज स्टार्ट फ्रॉम द पुर्तगाल. अब पुर्तगाल के रहने वाले जो लोग थे वहां से सफर का आगाज हुआ देखने के लिए कि जी अगर कोई ट्रेड के लिए और कोई इलाका है तो आगे मूव ऑन किया. वहां पर जाके उन्होंने ये सफर का स्टार्ट किया और डिफरेंट थ्योरीज वहां पर बनना स्टार्ट हो गई. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कोलंबस वाइज ऑक्युपेशन ए सेंट्रल प्लेस एडिंग अ न्यू वर्ल्ड टू द टू एन ओल्ड वन. यानी कि कोलंबस का जो स्टार्ट था सफर का वो पुराने दौर को एक नए दौर में तब्दील करना और नया एक हमें जिसे कहते हैं क्लू देना, वो हमें प्रोवाइड किया. उसके बाद वॉलरस्टेन्स एम्फेसिस इन द सेकंड वॉल्यूम, अपने सेकंड वॉल्यूम में वो कह रहा है वॉलरस्टेन, हाउएवर इज ऑन द 17th सेंचुरी. अब क्या है, कंपटीशन अमंग द वेस्टर्न यूरोपियन नेशन, हिज हिस्ट्री इन द ग्रैंड स्टाइल बट विद द फीट ऑन द ग्राउंड मीन्स, और परहैप्स वन शुड से इट्स लेग्स इन द सी. कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि हर चीज का जो इर्तिका है, स्टार्ट है, जो रिसर्च का स्टार्ट है, वो वाइजेस पर डिपेंड करता है. यानी जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तभी वो आगे हिस्ट्री में कुछ चीजें ऐड कर पाता है अपने को नॉलेज के अंदर मजीद चीजें. जब वो सफर करता है एक जगह से दूसरी जगह तो वहां से न्यू नॉलेज लेकर आता है और उसे बाद में आगे फर्दर वो आगे मूव ऑन करता है.
Now, what is cultural exchange? Carrying the world system approach even further back in time, Janet Abu Lughod has suggestively argued for an earlier system of world trade and even cultural exchange. Now, the next historian is Janet Abu Lughod. He argued for an earlier system of world trade, मतलब world trade का जो earlier system था in the past events in the history, वो कहता है कि कल्चरल एक्सचेंज वहां से स्टार्ट हुआ, यानी जब हमने सफर किया एक जगह से दूसरी जगह तो कल्चरल एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गया। मीन्स के जब एक इलाके के एक कल्चर दूसरे कल्चर के लोगों में जाएगा, वहां ट्रेड करेगा तो वहां से उनका असर लेना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, उसके मुताबिक शी फाइंड सच अ सिस्टम इन द पीरियड 1250 टू 1350 AD, यानी कि सन 1250 से 1350 तक वो कह रहा है कि ये सिस्टम स्टार्ट होना शुरू हो गया, ये जो दौर था कल्चरल एक्सचेंज का, विच शी डिजाइंड एज अ क्रूशियल टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। अब उसने देखा कि यहाँ पर जब कल्चर का ऊपर में एक्सचेंज स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेंज आ गई है, एक बहुत बड़ा हिस्ट्री के अंदर टर्निंग पॉइंट आ गया जो किसी हद तक चीजों को मिक्स आउट करना स्टार्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यहां पर एक चीज और हमें बताई जा रही है, थ्रू लैकिंग एन इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। अब उससे पहले हमें यहाँ पर यह बता रहे हैं कि कल्चर किस हद तक एक्सचेंज हुआ है, किस हद तक लोगों के आपस में ट्रेडिशन एक्सचेंज हुए हैं और लोगों ने एक दूसरे का असर लेना स्टार्ट कर दिया है। और द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। अब इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? थ्रू लैकिंग एन इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, हर सिस्टम कंसीव्स ऑफ वाइड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यूरोपियन, इंडियन एंड चाइनीज, as linked in far-ranging trade based on key cities. Applying this approach to even earlier periods, she speaks of the Roman Empire as the first nascent world system. Now, सबसे पहले क्या है यहाँ पर जो देखने वाली चीज है, through lacking an international division of labor। अब इंटरनेशनली जो लेबर की डिवीजन है वहां पर बड़ा लैक नजर आ रहा है हमें। क्या चेंज नजर आ रहा है? सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर कि हर सिस्टम कंसीव्स ऑफ वाइड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यूरोपियन, इंडियन एंड चाइनीज एज लिंक्ड इन फार रेंजिंग ट्रेड बेस्ड ऑन की सिटीज। यानी सबसे पहले तो उनके की सिटीज जहां पर मार्केट्स वगैरह बनाई जाती थी, वहां पर जो उनके मेन पॉइंट्स थे, सबसे पहले तो उन्होंने उनको फाइंड आउट किया। उसके बाद वहां देखा कि बड़ा वाइड एरिया है जहां पर मतलब इनको लगता है कि यहाँ पर ट्रेड अच्छे तरीके से किया जा सकता है। फिर उन्होंने इस अप्रोच को अप्लाई करते हुए देखा, अर्लियर पीरियड के साथ मैच किया। फिर देखा शी स्पीक्स ऑफ द रोमन एम्पायर, बाद में उसने रोमन एम्पायर की बात की कि ऐसे जैसे फर्स्ट नेसेंट वर्ल्ड सिस्टम, जैसे पहले कोई नौजायदा दुनिया होती है ना, बिल्कुल नई बनी हुई, फिर उसने नई जगह को पुरानी जगह के साथ बिल्कुल न्यूली कंपेयर किया, कंपेयर करके आगे इसमें चीजों के बारे में बताया है। कंट्रास्ट टू इक्यूमेनिकल हिस्ट्रीज, ऑल दीज वेरिएंट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, MC Neil, Bradel, Wallerstein, Abu Lughod share is a concern with systemic process. Their theories are systematic and their processes are systematic. Their things about the world history are matched with the MC Neil most of the time. In contrast to ecumenical histories, they make less pretense at predictions about the future and do not focus on civilization going through fixed cycle. लो फर्स्ट यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है बार बार के सिविलाइजेशन पर तवज्जो है, सिविलाइजेशन पर तवज्जो है, उनके कल्चर पर तवज्जो है। अब यहाँ पर एक नई चीज, नया टर्न दे रहे हैं यहाँ पर कि अब दोनों कल्चर्स के दरमियान पर उनके माहौल पर कंट्रास्ट स्टार्ट हो गया, उनका कंपैरिजन स्टार्ट हो गया कि उनका रहना कैसा है, उनका लिविंग स्टाइल कैसा है और यहाँ पर लिविंग स्टाइल उनका कैसा है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखेंगे कि शेयर इज एन concerned with system process and pattern of various sorts among a great variety of historical and natural phenomena.
Linking diverse populations means their diversity among the population, between the populations. In contrast to ecumenical histories, they make less pretense at prediction about the future. यानी कि देखते हैं कि जब वो आपस में इतनी इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई है तो फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि फ्यूचर में फिर बहुत बड़ी एक चेंज आने वाली है. एंड डू नॉट फोकस ऑन सिविलाइजेशन गोइंग थ्रू फिक्स साइकिल. और वो फिर क्या करते हैं कि जो वर्ल्ड की चेंजिंग है, सिविलाइजेशन की जो चेंजिंग है, वो देख रहे हैं कि एक फिक्स साइकिल से नहीं चल रही, बल्कि अब उनका जो साइकिल है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है. अब वो कहते हैं इन एडिशन थ्रू फोर्सेज टू रिले हैवीली ऑन सेकेंडरी अकाउंट्स दे स्टे क्लोज टू द स्कॉलरशिप ऑफ ऑर्डिनरी हिस्टोरियंस and of purely secular accounts, means even of religion. Now the next thing is transition arises to global history. अब यहाँ पर हमें इस स्लाइड में बताएंगे कि किस तरह से फिर वर्ल्ड हिस्ट्री टर्न दे रही है ग्लोबल हिस्ट्री की तरफ और किस तरह से उनकी ट्रांजिशन का प्रोसेस स्टार्ट शुरू हो चुका है. फर्स्ट, दीज वर्ल्ड सिस्टम अकाउंट्स आर सीरीज अटेम्प्ट्स historical treatments of phenomena that arises on a world scale, and it is at this point that the meaning of the term world becomes additionally crucial. It is also at this point that the possible transition arises to global history. अब ट्रांजिशन की अराइजेस बता रहे हैं ग्लोबल हिस्ट्री की तरफ. वो क्या है कि सबसे पहले तो दीज वर्ल्ड सिस्टम अकाउंट्स आर सीरियस अटेम्प्ट. इस वर्ल्ड सिस्टम का जो अकाउंट है उसका जो सीरियस अटेम्प्ट है, जो बेसिक पर्पस है, वो क्या है, हिस्ट्री के साथ, हिस्ट्री के जो नॉलेज है, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके साथ, उनके फिनोमिना के साथ ट्रीटमेंट कैसा है. ठीक है, कैसा ट्रीटमेंट है. अब यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि दैट राइजेज ऑन अ वर्ल्ड स्केल. अब वर्ल्ड स्केल पर जितने वॉयजेस बढ़ते जा रहे हैं, उतनी रिसर्चेज बढ़ती जा रही हैं, उतना ही उनका हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट्स बढ़ता जा रहा है, उतने ही कल्चर्स ऐड होते जा रहे हैं, उनके कल्चरल डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं, उनके कल्चरल क्लैश देखे जा रहे हैं, उनकी इमिटेशंस देखी जा रही हैं कि वो कितनी हद तक एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं. सपोज ड्रेसिंग के हवाले से हम कहेंगे, अगर हम उनके कोई शादी वगैरह के ट्रेंड्स कहेंगे, उनके मतलब के बैड सॉरो के इवेंट्स कहेंगे, सफरिंग्स कहेंगे, बहुत सारी चीजें उनकी हम फिर यहाँ पर रीड आउट करते हैं. उसके बाद वो कहता है इट इज ऑल्सो एट दिस पॉइंट दैट द पॉसिबल ट्रांजिशन अराइजेज टू ग्लोबल हिस्ट्री. अब ये तमाम पॉइंट जितने हमने स्टार्ट से अब तक डिस्कस किए हैं वो हमें बता रहे हैं कि देखें ट्रांजिशन का जो अमल है अब वो क्या है, स्पीडली काफी हद तक तेज हो गया. और वो क्या कर रहा है, ये तमाम चीजें मिलकर अराइज करें ग्लोबल हिस्ट्री को. हमें अब यहाँ पर फील हो रहा है कि जी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो लाजमी सी बात है कि उसे ग्लोबल हिस्ट्री का टर्न लेना चाहिए. यानी कि ग्लोबल हिस्ट्री का मतलब हैवीली रिसर्चेस, हैवीली फाइंडिंग्स, मींस के ज़्यादा चीज़ें. हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री के मुकाबले ग्लोबल हिस्ट्री सिर्फ सिविलाइजेशन पर बेस नहीं करेगी, बल्कि अब यहाँ पर लोगों के कल्चर की बातें आ गई हैं, लोगों के ट्रेडिशन की बातें आ गई हैं. ठीक है, लोगों के वॉयजेस की बातें आ गई हैं, लोगों के बिजनेसेस की बातें आ गई हैं. यहाँ पर मच मोर थिंग्स यहाँ पर वो उन्होंने डिस्कस की है हमारे साथ. तो फाइनली ये है कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में किया. वर्ल्ड हिस्ट्री के तमाम एस्पेक्ट्स, दे आर हिस्टोरियंस, और उनकी एसोसिएशन विद द एमसी नेल पढ़ी है. और हमने उससे पहले उसके बारे में पढ़ा था कि बाउंड्रीज की क्रॉसिंग कैसे हो रही है, उनकी डिस्कशंस कैसे हो रही हैं. बेसिकली क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ये शो कर रही है कि जो लिमिटेड हमें मटेरियल प्रोवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, हम उसको कैसे मतलब वहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. डेफिनेट सी बात है कि हम उसमें कोई ना कोई नॉलेज या कोई ना कोई चीज़ें आगे लेकर आगे की तरफ जा रहे हैं. होपफुली आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा. इफ़ एनी प्रॉब्लम देन यू विल आस्क. And thank you and Allah Hafiz.